Hey students, I am Kumar Kaur from Reason Academy team. So today we'll go through a poem and a very interesting poem of ours in a first flight book, Amanda. If you'll go through with the poem and you'll feel like that somewhere, if you are a girl or boy, whatever you are, you'll feel like some kind of nagging is all around you. मतलब कोई ना कोई आपको सिखा रहा है रूल्स ऑफ सोसाइटी दैट डू दिस डू दैट don't do this, don't do that. Someone is there who is teaching you up that this is the right for you and this is the wrong for you. These things just nag you a lot. There's a girl named Amanda, and she does the thing what the child do in a usual way. ठीक है, चाइल्ड जो हमेशा करते हैं, बच्चे जो हमेशा करते हैं, एंड वो ग्रोइंग एज पे वो अमेंडा है एंड सी इज़ डूइंग द थिंग वॉट एवर हर मूड लाइक. ओके, एंड वहाँ पे उसकी जो मदर है उसे नैग कर रही है और उसे मना कर रही है ये मत करो, वो मत करो, दिस मत करो, दैट मत करो. तो दैट नैगिंग जस्ट मेकिंग हर फील सो बस्ट, एंड वो अपना एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बना रही है. एंड इन दैट इमेजिनेशन वर्ल्ड सी क्रिएट्स दैट व्हाट सी वांट्स टू बी and what she really wants and what she want to do. These things we'll get through and we'll get to know about after reading that chapter. First of all, let me read that first lines over there, written over here. Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing and another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of things you want to do, but your parents, elders do not allow you to do. To read the poem aloud. Form pairs. Each reading alternates stanza. You are in for a surprise. So what is written over there, that I made you understand that in every child, like if you imagine yourself there, so you are being controlled. You can feel like that you are controlled by your teacher, your parents, your elders. All the one is just teaching you up in all the way. एंड वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. ऑल दो इन अ सेकेंड फेज आप समझ सकते हैं कि दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर योर गुड विल. ओके, आपके गुड फ्यूचर के लिए, आपके लिए वो अच्छा है. बट स्टिल नैगिंग ऑल द टाइम जस्ट मेक यू फील दैट वाई द पीपल आर बीइंग सो annoying, you can say like this. Okay, so we'll go through the text and I'm going to recite this poem, and I hope you'll like this very much because honestly, if I talk about myself, that I love this poem a lot. And Robin Callan has written that. He is the poet of that poem. Okay, I'm going to recite it. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slow thing and sit up straight, Amanda. So here the character is not defined, but in that way, while reading that chapter, reading that poem, we can understand that someone is there who is just stopping Amanda. एंड सोसाइटी हमारे लिए रूल्स बनाती है. ओके, दैट यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू डू दैट. एंड व्हाट दैट जो रूल्स है वो हमें सिखाता कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारे मदर, फादर, एल्डर्स, टीचर्स. They all are there to teach us that what is considered for us and what is good for us and what is we don't have to do. Okay, सो यहाँ पे डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. ऑल दो उसकी मम्मा बोल रही है या एल्डर बोल रहे हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नेल्स को मत काटो अमांडा. डोंट हंच शोल्डर्स अमांडा, अपने जो हंच होता है ऐसे करके नहीं, कुबर टाइप से कर लेते हैं, आगे की ओर झुका लेते हैं अपने आप को. तो डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, कि अपने शोल्डर्स को हंच मत करो अमांडा. स्टॉप दैट स्लोथिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. तो अपने उसके मम्मा बोलती है कि क्या करो, रिलैक्स होकर मत बैठो, स्ट्रेट होकर बैठो, जैसे तुम्हारी बॉडी की पर्सनालिटी क्या अच्छी होगी. ऑल दो दैट इज़ में 100 टाइम्स इज हैपन टू अस. मैं भी बहुत ज़्यादा नेल्स कट करती, बाइट करती थी, तो मम्मी मेरी डांटती थी कि डोंट बाइट योर नेल्स कोमल. तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग टू मी ऑल्सो. तो यहाँ पे मदर जो हैं हमारे अच्छे के लिए बोल रही हैं. मदर ये बोल रही है कि जो नेल्स होते हैं उसमें बहुत सारा जर्म्स होता है. इफ़ यू बाइट इट, जर्म्स विल गो इन योर स्टमक एंड इट विल गिव यू द एग. ओके, and that's why her mother is saying to not to do the
थिंक दैट व्हाट शी इज़ डूइंग। एंड वो हंच करके शोल्डर बैठी हुई है। अगर एक छोटा बच्चा जो हंच करके बैठा रहेगा, एकदम पर्सनालिटी उसका ग्रो नहीं होगा। वो एकदम आराम से रिलैक्स होके कुबड़ सा बना के अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है एंड ऑल द टाइम इफ़ द बच्चा विल सिट इन दैट पोजीशन, तो बॉडी क्या होता है उस ग्रोइंग सिचुएशन में होता है, तो क्या होगा वो हंच हो जाएगा, वैसा ही उसका बॉडी हो जाएगा। दैट्स वाई parents just nag us to just make our texture, our body have to posture in a good position. That's why they nag us and they tell us about things that do this, do that, do this, do that. Okay, now this is the second stanza you can see here, that is given in a bracket. Okay, in that bracket, this is Amanda feeling. Amanda wants to do that and be like this. So what is in it? I'm going to recite. There is a languid ambient sea where the soul inhabited is me, a mermaid drifting blissfully. सो वहाँ पे ये क्या बोलती है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज एम्ब्रेड सी, ग्रीन कलर का सी होता है ना, ग्रीन कलर का, ऊपर से देखोगे तो हरा कलर का समुद्र दिखता है, तो वैसा एक एकदम आरामदायक, एकदम सुंदर सा, खूबसूरत सा एक एम्ब्रेड सी है, एकदम बहुत हरा कलर का सी है। और जहाँ पे सिर्फ इनहैबिटेड कौन है, सिर्फ मैं अकेली, नो वन इज़ देयर टू नैग मी अप, आई एम द ओनली, बोला जाए ह्यूमन बीइंग ओवर देयर। और मैं मरमेड की तरह ड्रिफ्ट कर रही हूँ, ब्लीच कर रही हूँ, और ऊपर नीचे मतलब होता है ना ब्लीसफुली मैं घूम रही हूँ अपने मरमेड की तरह, मैं पानी में हो रहा है इधर उधर जा रही हूँ, एंड आई एम डूइंग व्हाट आई रियली वांट। दैट इज़ द फीलिंग ऑफ अमांडा बिकॉज हर मदर इज़ नाइंग हर, and that's why he wanted to go in some kind of place where she can be free. That's why she wants to go in that place where she will be alone. Either she doesn't know about that alone life is really a very tough decision, but still being a bacha, what can you think? You can just go with the flow that mama is nagging, I don't want mama, but without mama the life is nothing. You cannot even feel, you cannot even think your a single day without your mommy. आप तो अभी बहुत छोटे हो, इवन मैं भी नहीं सोच सकती अ सिंगल डे विदाउट माई मॉमी। ओके, नाउ द सेकेंड लाइन व्हाट हर मदर इज सेइंग टू हर, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो यहाँ पे मदर क्या बोल रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, आपने होमवर्क कंप्लीट किया अपना, आपने रूम साफ़ किया अमांडा अपना। और मुझे लगता है कि मैंने आपको कहा था अपने शूज़ साफ़ करने के लिए, क्या आपने अपने शूज़ को साफ़ किया अमांडा। तो दैट इज़ द बेसिक रूल बोला जाए, डेली रूल आपका बोला जाए, यू नीड टू डू योर होमवर्क, विदाउट योर स्टडी यू विल बी नथिंग इन फ्यूचर। दैट्स वाई हर मदर इज सेइंग हर टू जस्ट स्टडी हार्ड, बट स्टिल दैट फील्स हर दैट शी इज़ नैगिंग हर। एंड वो अगेन ये बोल रही है कि होमवर्क किया तुमने, रूम साफ़ किया, मैंने तुम्हें शूज़ साफ़ करने के लिए बोले थे, क्या तुमने अपने शूज़ साफ़ किए। तो इसे बड़ा ज़ोर से गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे वो जो नेक्स्ट जो स्टेंजा है देखो, दैट इज़ ऑल्सो इन अ ब्रैकेट एंड दैट इज़ द फीलिंग ऑफ हर अमांडा की फीलिंग है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटेड सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। तो आई एम एन ऑर्फन, orphan means that we all know that the child who has no parent, that the person is called orphan. Does she want to be orphan? यहाँ पे orphan का मतलब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये चल जाएंगे, ये समझेंगे कि वो अपने आप को फ्री रखना चाहती है, मीन्स विदाउट मदर एंड एंड शी इज़ सो लिटिल, शी डजंट नो अबाउट दैट कि ये ऑर्फन का मतलब क्या होता है या फिर उसका रियल पेन क्या होता है। दैट्स वाई वो अपने आप को अकेला रखने के लिए ये बोलना चाहती है कि एक मैं ऑर्फन हूँ, मैं स्ट्रीट में इधर उधर घूम रही हूँ, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, मेरे पैरों में जो है मिट्टी लग रही है, मैं मिट्टी से जो था मैं एकदम खाली पैर घूम रही हूँ, मिट्टी से जो सॉफ्ट मिट्टी, गीली मिट्टी मेरे पैरों में लग रही है, मैं उससे पैटर्न बना रही हूँ, और मुझे क्या कोई मतलब जूते चप्पल मुझे कुछ नहीं पहनना। द साइलेंस इज़ गोल्डन, जो शांत रहेगा, जो शांति होता है वो क्या होता है, गोल्डन, और फ्रीडम जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, सबसे मीठी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी जोड़ सकते हैं, जैसे इसकी मदर ने इसको शूज़ साफ़ करने के लिए बोला और होमवर्क करने के लिए बोला, उसके साथ इसने कनेक्टिविटी जोड़ी कि उसे
वो ऑर्फन रहे और उसको कोई बोलने वाला ना हो, वो इधर उधर घूमती रही। मे बी उसने बच्चों को देखा हो बाहर, जो ऑर्फन बच्चे होते हैं वो आराम से घूमते रहते हैं, उनको लाइफ की कोई टेंशन नहीं होती, पर उनके लाइफ का जितना स्ट्रगल है इस बच्ची को नहीं पता। दैट्स वाई वो बोली काश मैं ऑर्फन ही रहती और मैं बेयर फुट, खाली पैर मैं घूमती रहती हूँ। उसकी मदर ने उसको शूज़ साफ़ करने के लिए बोला है, तो दैट्स वाई यहाँ से वो कनेक्टिविटी मिला रही है और बोल रही है कि मैं खाली पैर घूमूँ इधर उधर अच्छे से। ओके, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। उसकी मदर बोल रही है, ऑफ कोर्स एक मदर आपको बोलेगी, नैक करेगी चॉकलेट मत खाओ, आपके दांत खराब हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी मदर क्या बोल रही है, तुम्हें एक्ने को याद नहीं, तुम्हें पिछली बार तुम्हारा एक्ने आ गया था, पिंपल आ गया था, तो इसलिए तुम चॉकलेट मत खाओ। ये उसकी मदर अच्छे के लिए बोल रही है, लेकिन इसे गुस्सा आ रहा है। और अमांडा फिर मतलब जब उसकी मदर जो है बात कर रही है, तो वो क्या हो रहा है, नीचे की ओर देख रही है। तो उसकी मदर बोलती है, विल यू प्लीज़ लुक एट मी अमांडा व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी कि नहीं देखोगी। तो दिस सी इज़ टीचिंग हर रूल्स दैट कि अगर आपके बड़े आपसे बात करें, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, यू हैव टू लिसन देम केयरफुली, दैट इज़ द हैपनिंग। Then now her feeling is into the bracket and you're gonna read it out. Okay, I'm Rapunzel, I have not a care, life in a tower in a tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair. तो यहाँ पर रपुंजल की कहानी जिसने जिसने सुनी होगी, ऑल द गर्ल्स आर देयर, सी विल से दैट या मैम आई हैव गॉन थ्रू विद रपुंजल कहानी। मे बी लड़कों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको रपुंजल की कहानी नहीं पता हो। ये फेरी टेल्स वगैरह समथिंग आप समझ सकते हैं कि एक गर्ल रहती है रपुंजल, उसके लंबे लंबे बाल रहते हैं, वो एक बड़े से टावर में रहती है, उस टावर में कोई सीढ़ियाँ नहीं होती और वो अपने बालों को नीचे गिराती है। तब उसकी जो चुड़ैल मदर होती है वो चढ़कर ऊपर आती है, वो उसकी मदर नहीं होती है, वो कि उस बच्ची को कहीं से चुरा कर लेके आती है। मतलब दैट इज़ द स्टोरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड ना। दैट्स वाई थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी तभी आपको समझ आएगा कि हु इज़ रपुंजल। तो वो रपुंजल क्या होते हैं, तो वो बोली काश मैं रपुंजल होती, कि मैं एक रपुंजल हूँ और मुझे किसी की चिंता नहीं, मैं आराम से ऊपर अकेले एक टावर में बैठी हुई हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, एकदम मेरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, काम है, रेयर है, एकदम शांति से मैं हूँ। और मैं क्या करूँगी, जब मैं उस टावर में चली जाऊँगी, वहाँ पे ऊपर बैठी रहूँगी, तो मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं करूँगी ताकि उसे पकड़कर कोई भी ऊपर आ सके। सो शी वॉन्ट्स टू बी अलोन बिकॉज नैगिंग ऑल द टाइम फॉर द सिंगल थिंग, वो था ना, अच्छा मतलब ये बोल रही है, वो बोल रही है, ये करो वो करो, दिस मत करो दैट मत करो, टीचिंग ऑल द थिंग every time just makes you feel buzz, that you feel like that I want to go in some kind of place where no one is there and I'll be alone, just be in myself and listen to my own voice. यहाँ पे इतना लोग इतना कुछ बोलते हैं कि आप अपना वॉइस ही भूल जाते हो, सुनते सुनते सुनते। पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, this and that, all the things. Now in the last stanza over there, stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो यहाँ पे उसकी मदर बोलती है, तो इतना बोलने के बाद उसके बाद उसको बोलती है कि अब सल्किंग मत करो, मतलब है ना हल्का हल्का सा रोना, जो सिसकी लेना। तो उसको इसकी मदर बोलती है, अब स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अब छोटी छोटी बातों पे रोना मत शुरू कर दो। यू आर सो मूडी अमांडा, तो वो उसको बोली तुम बहुत मूडी हो अमांडा। ऑल्दो उसकी मदर को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो उसे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, फिर भी वो उसी को डांट रही है कि तुम कितनी मूडी हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया है, मैंने तुम्हें नैग किया है, मैंने तुम्हें तंग किया है, तभी तुम रो रही हो अमांडा। ऑल्दो बोल सकते हैं कि इसकी मदर बहुत मूडी है, वो बार बार उसे चीज़ें करने के लिए बोल रही है, पर स्टिल this is the rule of society which we have to follow with some kind of you can say that some kind of rules that you need to go in that path to live in the society, and that is the thing all about this poem. And I hope you like this poem. Okay guys, if you'll keep yourself in the place of Amanda, then you'll love this poem. Thank you. See you in the next.